Hello everyone. In this video, let's cover our next topic like POSET. So POSET stands for partially ordered set, and partially ordered set, we can say they are a kind of relation. So what kind of relation they are? Let's see. So it is written that a relation on any set A is a partial order set, or it is a partial ordering if it is satisfying the three properties, that is reflexive, antisymmetric, and transitive. So as we know that what are reflexive, antisymmetric, and transitive properties, so in that way, if we go through that what is a reflexive property, so this is a reflexive property where for any set A, all the element belongs to set A should have this kind of relation. So for example, if A is consisting of an element 1, 2, 3, then to be reflexive, it should contain 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3. सो इट्स लाइक उस सारे एलिमेंट्स के लिए मेरे पास उसका एक मिरर इमेज वाला एक रिलेशन, एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए. देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. Second property is an antisymmetric property which states that if any element A it is related to an element B, अगर वो A से relate कर A B से relate करता है तो B A से relate करेगा, और इस सीक्वेंस में हम ये कहेंगे कि A और B इक्वल हैं. Like for example, if for any relation on set A which consists of 1, 2, 3 as an element, if that element is having 1, 1, 2, 2 and 1, 2 and 2, 1. तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो 1, 1 है, 1, 1, 1 is related to 1 and 1 is related to 1 and therefore 1 is equal to 1. इसका मतलब ये तो मेरा कैसा हुआ, एंटीसिमेट्रिक पेयर हुआ. Like this, 2 is related to 2, 2 is related to 2 and it implies that 2 is equal to 2. हम ये कह सकते हैं. Now coming to the next ordered pairs, 1 is related to 2, 2 is related to 1, but 1 is equal to 2. Is it possible? So answer is no, it is not possible. क्योंकि 1 2 के equal नहीं हो सकता according to this set and the relation. इसीलिए हम कहेंगे कि since for this ordered pair the relation is not satisfying antisymmetric property, hence the relation is not an antisymmetric relation. So इसके लिए चाहिए कि ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके इस रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए जहां पे हम ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट उसकी इमेजेस को या ऑपोजिट उसका जो सीक्वेंस है वो हमें मिले. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम ये कहेंगे, हम ए से बी जाते हैं और बी से सी जाते हैं, तो मेरे पास एक पाथ है ए टू बी का और एक पाथ है बी टू सी का. तो अगर मेरे पास पाथ एग्जिस्ट करता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ ए से सी हमारा पाथ एग्जिस्ट करता है, फिर चाहे वो बी के थ्रू ही क्यों ना हो. तो इन दैट वे हम कहते हैं दिस इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. तो ए इफ इट इज रिलेटेड टू बी एंड B इज रिलेटेड टू C, ये दोनों का होना मैंडेटरी है. तो अगर A B से रिलेट कर रहा है और B C से रिलेट कर रहा है, तब हम चेक करेंगे कि क्या A C से रिलेट करता है उस रिलेशन में या नहीं. इफ दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विल exist for any relation, then the relation is said to be a transitive relation. And as per this statement, a set with a partial ordered relation A, that is said to be an partially ordered set, उसको हम बोलते हैं पोसेट. तो अगर हम देखें तो हम खाली रिलेशन को पोसेट नहीं बोलते, बजाय उसके हम सेट और उसके साथ जुड़ा हुआ जो रिलेशन है जिसके ऊपर जिस सेट के थ्रू वो रिलेशन डिफाइन किया गया है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ एन algebraic structure we can say, that is said to be a poset which is a partially ordered set. Now coming to the next one, if we go through the next one, then we say that for any relation R, we use this symbol. This is a kind of symbol we can say, right? ये symbol हम use करते हैं सिर्फ एक partially ordered set में उस relation को define करने के लिए. तो आपका ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपको हमेशा यही सिंबल यूज करने को मिलेगा, जिसे कहेंगे हम A इज बिफोर बी और बी इज आफ्टर ए. तो ये एक यूजुअल ऑर्डर डिनोट करता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको पार्शियली ऑर्डर्ड सेट.
नाउ नेक्स्ट इज टू लाइक जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि हाँ ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो सकता है या नहीं हो सकता, या ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए या नहीं होता है. तो लेट्स सी देयर आर सम सर्टेन एग्जाम्पल्स वी कैन गो थ्रू to find out whether they are partially ordered set or not. So like the first one, it is saying that any relation which is defined by, like we can say it is greater than, ठीक है, it's defined by the greater than property. So with this property we can say it is a partially ordered set relation, or it is a partially ordered where the set is defined as a integer set. So this is by default, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी रिलेशन आपके आएंगे वो इक्वल टू साइन है. तो अगर मैं इंटीजर कोई भी इंटीजर लूँ तो 1 1 है, सो दैट इज 1 इज इक्वल टू 1, इट इज रिलेटेड टू itself, 2 is related to itself, 3 is related to 3. इन दैट वे इसी सीक्वेंस में अगर मैं कहूं कि 2 1 से बड़ा होगा, 3 2 से बड़ा होगा, 4 3 से बड़ा होगा, तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, दैट रिलेशन जिस सीक्वेंस में डिफाइंड है दैट मैं कह सकती हूँ कि 4 इज रिलेटेड टू 3, 3 is related to 2 and 2 is related to 1. लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है. हम ये नहीं कहेंगे कि 1 2 से बड़ा है, ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं होता, इसीलिए ये एंटीसिमेट्रिक नहीं हो, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, जिसकी वजह से मेरे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, मतलब एक तरफ से रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ए इज रिलेटेड टू बी, बट बी रिलेटेड टू ए तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो दोनों इक्वल होंगे. अगर वो इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारा ये वाला रिलेशन ये एग्जिस्ट नहीं करता है. दैट्स व्हाई वी कैन से द रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक. थर्ड प्रॉपर्टी विच इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि अगर मैं कहूं कि 4 3 से बड़ा है और 3 1 से बड़ा है तो बाय डिफॉल्ट 4 1 से बड़ा है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इसके लिए एग्जिस्ट करती है. दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट फॉर अ गिवन रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर यहाँ नेगेटिव का भी हो एग्जाम्पल तो भी हम यही कहेंगे दैट 4 इज ग्रेटर देन -3, -3 is greater than minus sorry, this is going to be a different thing. -3 is like greater than -5, so in that way the relation will satisfy this greater than property. Now set of all positive integers under divisibility. Divisibility का मतलब जब वो डिवाइड करता है, तो जब वो डिवाइड करेगा तो डिवाइड के साथ आप उसमें किस तरीके से ये डिफाइन करेंगे कि आपका कौन सा, मतलब लाइक कौन से एलिमेंट्स डिवाइड कर पाते हैं. तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज अ पोसेट, और उसमें हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रेशियो. तो जैसे मैंने कहा लाइक 4 डिवाइड्स 8, ठीक है, सो इट इज लाइक 4 8 को डिवाइड करता है और 8 16 को डिवाइड करता है, राइट. तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे दैट इसके अलावा 8 16 को डिवाइड करता है, तो मेरे पास एक ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, एक ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया. तो इसमें मेरा रिलेशन किसके बीच में है, दैट 4 इज रिलेटेड टू 8 एंड 8 इज रिलेटेड टू 16. तो ये तो हो गया एक तरीके से 4 कैन ऑल्सो बी रिलेट टू 16. तो दिस इज एन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आई हैव शोन. अब आते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं. तो रिफ्लेक्सिव होगा, डेफिनेट सी बात है. 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करेगा. सो फॉर ऑल दीज पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबिलिटी इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. नाउ कमिंग टू एन एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी. एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि 4 8 को डिवाइड कर रहा है, बट क्या 8 4 को डिवाइड कर सकता है एज पर दिस रूल, देन इट इज नो. और अगर ऐसा हो रहा है लाइक 4 इज रिलेटेड टू 4 एंड 4 इज रिलेटेड टू 4, तो वो दोनों इक्वल हैं तभी वो डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ से. तो अगर वो एक तरफ से है तो इसका मतलब वो सिर्फ एक ही तरफ से होगा कि या तो 4 8 को डिवाइड करता है या फिर 8 4 को डिवाइड करता है. तो इट इज लाइक वी नो दैट दिस इज द पॉसिबल रिलेशन. तो ये पॉसिबल रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्ट. दैट्स व्हाई द रिलेशन इज अ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन. That's why we can say all three properties are going to be there with this relation divisible. That's why it forms a poset, which is a partially ordered set. Now coming to that, this inclusion, right? हम अगर कहें कि जितना भी ये आपका ये वाला रिलेशन है, दिस इज अ
सबसेट, अ काइंड ऑफ सबसेट रिलेशन, और इसको हम इंक्लूजन रिलेशन भी बोलते हैं। तो इट इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द पावर सेट ऑफ अ सेट एस। तो क्या ये पावर सेट मतलब उस सेट पे क्या ये चीज पॉसिबल होगी या नहीं होगी, वो हमें देखना है। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए देखें, लाइक एज पर जो रूल कहता है, लाइक मुझे चेक करना है कि ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है या नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हुई मेरी यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए आप क्या चेक करोगे कि क्या मेरा जो एक पावर सेट है, लाइक एक सबसेट है किसी भी सेट का, तो एक सबसेट है, सपोज एक सेट है मेरे पास ए, राइट, और इसके पावर सेट मुझे निकालना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम खाली दो एलिमेंट्स का लेते हैं फिलहाल, ए बी, और इसके पावर सेट में मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे नल सेट, ओनली एलिमेंट ए, ओनली एलिमेंट बी, एंड वी हैव ए कॉमा बी, राइट। अब इसके साथ अगर आप देखो तो वो ये कह रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर मैं कहूं कि सपोज ये ए है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस, सो इट इज अ सबसेट ऑफ ए, yes it is a subset of A, right? Similarly, B, so B is a subset of B. Null, so null is a subset of null because it's a subset of every set, right? So for all these elements we can say that inclusion property, the inclusion relation, inclusion operator, it is reflexive operator, right? So other properties, if we go through that, what are the different other properties we do have in this? So let's take our next property which is said to be an antisymmetric property. तो antisymmetric property के according मुझे क्या check करना है कि क्या वो जो relation है, right, जो relation हम लाइक डिफाइन कर रहे हैं, जो रिलेशन हम ले रहे हैं, तो क्या वो रिलेशन यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। ए इज द सबसेट ऑफ बी, एंड इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो हमें पता है कि अगर एक दूसरे के सबसेट हैं, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो इसका मतलब ए और बी दोनों कैसे हुए, इक्वल सेट्स हुए। नाउ इफ आई से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि इसका मतलब एक एलिमेंट है ए बी, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ ए बी, तो डेफिनेट सी बात है, एंड ए बी इज द सबसेट ऑफ ए बी, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए, ये डेफिनेट है, ठीक है। तो ये चीज मेरी क्या करेगी, दिस इज गोइंग टू बी अ क्लिक वन। तो ये मेरा एंटीसिमेट्रिक हुआ। अभी एक पॉसिबिलिटी अगर मैं ये कहूं कि ए इट इज द सबसेट ऑफ ए बी, राइट, वी ऑल अग्री विद दिस, बट क्या मैं ये कह पाऊंगी कि ए बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये रिलेशन पॉसिबल होगा, नहीं, द आंसर इज नो। That's why, since its opposite is not possible, therefore I need not to check that whether A and AB are equal or not. ये मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, not required. बिकॉज मेरी एक कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप आगे कंडीशन चेक नहीं करते हो एज पर आवर कंप्यूटर लॉजिक, राइट। नाउ the third property, A is related to B, B is related to C, that means if A is a subset of B, B is a subset of C, तो हम कहेंगे A भी C का सबसेट है, ठीक है। तो एक तरीके से A के सारे एलिमेंट्स हमारे B में हैं, तो मैं कहूं अगर ये एक तरीके से ये B सेट है, तो A is a subset of B, राइट, ये बी सेट हो गया। और ये क्या कह रहा है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट है। तो अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लाइज with this kind of inclusion principle, right, inclusion operator, therefore it is transitive, and hence we can say that for a power set of any set, this सबसेट रिलेशन विल डिफाइन द पार्शियल ऑर्डरिंग, वो उसके ऊपर पार्शियल ऑर्डरिंग डिफाइन करता है, राइट। तो like this we can check for any kind of operator, any kind of set. And if we take another example, so let's say we have a relation defined as r is equals to ab, a is less than b on the set of integers, so is this a partial order relation or not, ठीक है। सो द आंसर इज यस, बिकॉज इससे पहले हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का एग्जाम्पल देखा था। तो जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू किसी भी लाइक इंटीजर के सेट पे वो सेटिस्फाई करता है तीन प्रॉपर्टीज को, उसी तरीके से अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो भी उसको सेटिस्फाई कर सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड with only less than, here
प्लीज नोटिस एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू साइन नहीं है, मेरे पास सिर्फ लेस देन है. आई डोंट हैव इक्वल टू सिंबल राइट हियर, राइट. तो ये जो इक्वल टू सिंबल है ये क्या करता है आपके रिलेशन के अंदर, लाइक ए कॉमा ए या 1,1 2,2 सच काइंड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी एबल टू जनरेट. लेकिन जब मेरे पास सिर्फ लेस देन का सिंबल होगा तो मेरा सिंबल 1 2 2 3 3 4 4 5 लाइक दिस एक चेन बन जाएगी, बट मेरे पास इक्वालिटी नहीं होगी कहीं पे भी, जिसकी वजह से दैट रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा. और अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो पहली ही प्रॉपर्टी आपकी डिससेटिस्फाई हुई, देयरफॉर इट इज नॉट अ पोसेट. और जब एक ही प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं, हम डिनाई कर सकते हैं कि वो हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा. ठीक है. सो लाइक दिस हम किसी भी रिलेशन के लिए ये चीज चेक कर सकते हैं. ठीक है. So, like in this example, I said A is less than A, not possible, right? It is not true that we should have like A comma A type of ordered pairs will be able to generate. That doesn't belongs to our relation, therefore it is not reflexive. And hence we can clearly declare that this kind of set which is given with the operator less than only will not generate an partial order relation. Now coming to the second concept of पोसेट, क्योंकि जो हमें पोसेट है वो जनरली जो उसकी एक एप्लीकेशन है, बेस्ट एप्लीकेशन, वो है कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करना, एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करके दिखाना कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है. वहां पे हमें बहुत हेल्प मिलती है जब हम पोसेट की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज कंपेरेबिलिटी हियर? तो जैसे हम कंपेरेबिलिटी एक टर्म है, जो चीज कंपेयर हो सके आपस में उसको हम कंपेरेबिलिटी बोलेंगे या कंपेरेबल बोलेंगे. तो हेयर the two elements they are said to be comparable if either A is less than equal to B और B is less than equal to A. तो आप प्लीज इसको less than equal to मत रीड कीजिएगा. इसका मतलब है A is related to B और B is related to A. यानी कि या तो A B के पहले आता है या A B के बाद आता है. तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी. अगर दोनों में से कोई नहीं है, मतलब ना तो ए बी से रिलेट करता है ना बी ए से रिलेट करता है, तो हम ए और बी को बोलेंगे ये नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं. इनको हम डिफ्रेंशिएट करके नहीं बता सकते, या हम ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में से कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है. राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल the relation of divisibility, it says that A related to B if A divides B is a partial ordered ring on a positive set of integers. तो अगर मैं 2 और 4 को बोलूं, राइट, 2 and 4, तो yes 2 divides 4 ये होता है. बट अगर कोई मुझे बोले 2 divides 5, सो आई कैन नॉट कंपेयर इट बिकॉज ये दोनों आपस में रिलेट ही नहीं करते. तो मेरा ये क्या हो जाएगा, दे आर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स. ठीक है. लाइक दिस अगर मुझे बोला जाए कि 3 डिवाइड्स 9, तो यस 3 डिवाइड्स 9. बट अगर मुझे कोई बोले कि 3 डिवाइड्स 16, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि वो उसको पूरी तरह डिवाइड ही नहीं करेगा. तो जब वो उसके लिए कोई आउटकम नहीं देगा तो आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ ये पहली चीज ये रिलेट ही नहीं कर रहे हैं. तो जब रिलेट नहीं करती कोई चीज तो हम उसको नॉट कंपेरेबल आइटम्स या नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स में हम उसको ऐड करते हैं. राइट. लाइक जैसे कंपेयर कर रहे हैं हम, तो कंपेरेबिलिटी के थ्रू हम एक ऑर्डर जनरेट कर पाते हैं, एक कहना चाहिए सीक्वेंस जनरेट कर पाते हैं फॉर द गिवन सेट ओवर द ऑपरेटर. तो मेरे पास यहाँ पे सपोज करें अगर मैं अगर कहूँ तो मेरे पास टोटली ऑर्डर्ड सेट का मतलब ये हुआ, ये ध्यान रखिएगा, टोटली का मतलब हर एक पेयर, हर एक दो एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल है. और अगर हर दो एलिमेंट्स आपस में कंपेयर हो पा रहे हैं, इसका मतलब आप उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो, आप उनको एक चेन की तरह क्रिएट कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ हमेशा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो चाहे लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, दे आर सेड टू बी कंपेरेबल एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दीज टू विल बी एबल टू जनरेट अ चेन. जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 is less than equal to 2, less than equal to 3, less than equal to 4, 5 and so on. अब देखो इसमें 1 2 से रिलेट करता है,
1 3 से भी रिलेट कर रहा है, 1 4 से भी कंपेरेबल है, 1 5 से कंपेरेबल है। तो एनी हाउ मेरा जो वन एलिमेंट है वो हर किसी एलिमेंट के साथ फिट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आ जा रहा है, ठीक है, और वो रिलेशन सेटिस्फाई भी हो रहा है। उसी तरीके से टू, अगर आप टू को लोगे तो वो टू भी सेटिस्फाई हो रहा है, लाइक वन से भी रिलेट हो रहा है, थ्री से भी रिलेट हो रहा है, फोर से भी रिलेट हो रहा है, फाइव से भी रिलेट हो रहा है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर टू इज लाइक रिलेटेड टू एनीथिंग। इसी तरह से आप कोई भी आप नंबर उठा लीजिए पॉजिटिव इंटीजर में से, वो कहीं ना कहीं आपका फिट होगा, और ये एक चेन क्रिएट कर देता है, दैट इज सेड टू बी अ टोटली ऑर्डर्ड सेट। अनदर एग्जाम्पल लाइक इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में लेस देन का सिंबल हो या ग्रेटर देन का सिंबल हो, यू आर एबल टू फाइंड दिस काइंड ऑफ सेट। बट अगर मेरे पास सिर्फ लेस देन है या सिर्फ ग्रेटर देन है, दीज टू काइंड ऑफ ऑपरेटर्स दे आर नॉट डिफाइनिंग अ पोसेट। और जब कोई चीज पोसेट के अंदर नहीं है, जब कोई चीज पार्शियली ही ऑर्डर्ड नहीं है, तो उसको हम टोटली ऑर्डर तक तो नहीं पहुंचा सकते, राइट? नाउ next is the poset over the positive integer is divisibility, right? It is not totally ordered set as it contains some elements which are not comparable. Can we have, like, can we prove it? How we can prove it? Like I said positive integers, so positive integers में जैसे 2 है, 2 9 को डिवाइड नहीं कर सकता, 2 21 को डिवाइड नहीं कर सकता, 2 15 को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 3 आपका 16 को डिवाइड नहीं करता, 3 8 को डिवाइड नहीं करता। तो ये सारे जो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 है, 2 सबसे कंपेयर नहीं हो रहा, 2 इज नॉट रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट लाइक दिस, दैट्स व्हाई this is not a totally ordered set, rather we can say this is a partially ordered set because वो तीन properties को satisfy कर रहा है somehow, बट इट इज नॉट लाइक कि हम हर एक एलिमेंट को इसमें एक सीक्वेंस में अरेंज कर पाए, इस थ्रू ऑपरेटर के थ्रू वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ टोटली ऑर्डर्ड सेट। सो इन दिस वीडियो we have like covered what is poset, what is comparability, and what is like totally ordered set। जब हम कंपेयर कर पाएंगे तभी हम totally ordered set को फाइंड आउट कर सकते हैं। All the contents, pages, they belongs to the owner only. Thank you.